रचना आपके सामने प्रस्तुत है GSLV F-16 प्रमोचक यान की। कुल ऊंचाई 51.7 मीटर। इसका कुल उत्थापन भार 420.5 टन का होता है। त्रिचरणीय है यान है यह। प्रथम चरण में S-139 तथा चार L-40 स्ट्रैप-ऑन्स लगे हुए हैं। द्वितीय चरण में L-40 तथा तृतीय में क्रायो अपर स्टेज जो कि क्रायो इंजन वाला चरण है। और ऊपर में हमारा उपग्रह नाइसार पूरी तरह सुरक्षित है। पेलोड फेयरिंग के अंतर्गत इस समय पेलोड फेयरिंग 4 मीटर व्यास वाली उड़ने जा रही है। इसलिए GSLV F-16 की उड़ान दक्षिणी दिशा की उड़ान होने जा रही है। इसलिए इस प्रमोचक यान को पूर्णतः ट्रैकिंग रेंज में रखने के लिए 4 भू-स्थित रडार ट्रैकिंग स्टेशंस जो कि शार, त्रिवेंद्रम, मॉरिशस और अंटार्कटिका में स्थित हैं, यह यान पर पूरी तरह निगरानी रखेंगे और हम तक सभी आंकड़े वास्तविक समय पर उपलब्ध करेंगे। का दृश्य सभी छात्र छात्राओं पर भारी संख्या पे यहाँ भीड़ उमड़ आई है। इस प्रमोचक यान का अनुभव लेने के लिए ये शब्दों से बाहर का अनुभव होता है। अपनी आंखों से स्वानुभव लेने वाला यह पल देखिए, क्या उत्साह देख सकते हैं। T-10 minutes. To address these mounting challenges, NASA and ISRO have joined forces in an extraordinary collaboration to launch the NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar Satellite, NISAR. This groundbreaking low Earth orbit LEO observatory promises to revolutionize the way we understand our dynamic planet. Equipped with state-of-the-art LNS-band synthetic aperture radar, SAR systems, NISAR will use the sweep SAR technique to deliver high-resolution images across vast swaths of the Earth's surface. Incredibly, it will map the entire globe every 12 days, offering unprecedented consistency in spatial and temporal data. NISAR's mission is nothing short of transformative. From tracking glacial melt and monitoring agricultural landscapes to analyzing seismic shifts and managing disaster response, it will empower scientists, researchers, and policymakers with vital insights. By precisely measuring minuscule movements and colossal environmental events alike, NISAR will help us decode Earth's complex ecosystems and natural hazards. The flagship mission sees NASA contributing the L-band SAR, engineering payloads, critical systems like GPS receivers, and the solid-state recorder. ISRO is supplying the S-band SAR spacecraft bus and will launch the satellite aboard through its vehicle GSLV F-16. A reflector antenna will unite the dual-band systems, enabling powerful Earth observations from orbit. The geosynchronous satellite launch vehicle GSLV F-16 features a 3-stage configuration. Its first stage comprises a solid rocket motor at the core, supported by 4 liquid strap-on boosters. The second stage operates on liquid propellant, while the third and final stage is powered by an indigenously developed cryogenic upper stage. The payload fairing for the GSLV F-16 NISAR mission features a SDSC SHAR at Sriharikota. It is the first GSLV mission to be launched into a sun-synchronous polar orbit. NISAR is not just a satellite. It's a symbol of global unity, scientific excellence, and hope. It promises to safeguard our future by helping humanity live more wisely with nature. 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति पर ले आएगा। द्वितीय चरण के दौरान यान से ऊष्मा कवच यानी पेलोड फेयरिंग को अलग कर दिया जाता है और यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपना दिशा निर्धारण करता है।
द्वितीय चरण की समाप्ति के पूर्व ही तृतीय चरण जो कि क्रायोजेनिक ईंधन वाला चरण है उसे प्राधिकृत किया जाता है। T-4 minutes. द्वितीय चरण के पृथक्करण के तुरंत बाद GSLV का तीसरा और सबसे जटिल क्रायो इंजन प्रज्वलित होता है। क्रायो चरण के पूर्ण प्रज्वलन की पुष्टि हो जाने पर उसमें 11% अतिरिक्त प्रणोद के लिए कमांड दिया जाएगा। इसमें CE 7.5 इंजन का क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जा रहा है जो कि 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की पश्चात क्रायो चरण को पुनः सामान्य प्रणोद के लिए कार्यशील किया जाएगा और फिर 400 सेकंड पर वह 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त करेगा और अंतरिक्ष यान को अंतरिक्षेपण की स्थितियां प्राप्त करेगा। यह पूरा कार्य लगभग 1115 सेकंड पर पूरा किया जाएगा। We are about to. वर्तमान में तृतीय चरण क्रायो अपर स्टेज कार्यरत है। इस दौरान यह लगभग 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। यह चरण लगभग 850 सेकंड्स तक जारी रहेगा। Cryo stage performance normal. सभी विशिष्ट वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित इस घटना के साक्षी लगभग 850 सेकंड्स तक जारी रहेगी। इस दौरान आपको उपग्रह के बारे में कुछ जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। नासा इसरो सिंथेटिक परफॉर्मेंस नॉर्मल, जिसे संक्षिप्त में NISAR कहते हैं, वैज्ञानिकों को प्राकृतिक खतरों और विनाशकारी घटनाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए मदद करेगा। उपग्रह की बादलों को भेदने की क्षमता के कारण यह तूफान और बाढ़ जैसी मौसमी आपदाओं के दौरान त्वरित व सटीक जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम होगा, जिससे तत्काल प्रतिक्रिया समुदायों को मदद मिलेगी। यह बर्फ की चादर, ग्लेशियर और समुद्री बर्फ में परिवर्तन जैसे प्रमुख वैश्विक पृथ्वी अवलोकन को प्रदान करेगा। साथ ही वनों की कटाई, वनाग्नि तथा स्थायी रूप से बर्फ से ढकी हुई जमीनों का अवलोकन करने में भी सक्षम होगा। यह एक अग्रणी मिशन है जो कि पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक जानकारी का खजाना प्रदान करेगा। इन सभी वैज्ञानिक आंकड़ों का होगा। यह एक अग्रणी मिशन है जो कि पृथ्वी की वैश्विक पृथ्वी अवलोकन को प्रदान करेगा करने में भी सक्षम होगा। यह एक अग्रणी मिशन है जो कि पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक जानकारी का खजाना प्रदान करेगा। इन सभी वैज्ञानिक आंकड़ों के लिए लगभग 9000 किलोमीटर दूर